नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरी पे, जहाँ पे आज हम लेकर आए हैं एक युवा प्रतिभा को, जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। हमारे बीच में है मृणाल जोशी। उनसे बातचीत करने से पहले, उन्हें जानने से पहले देखते हैं ये वीडियो। How would you feel if I tell you that the government, without any conditions, will give you, say, rupees 1,000 for free? And not just once. The government will give you money every month. And not just you, your family, friends, relatives, and every citizen of this country will get the money for free unconditionally. Some of you might be thinking that this isn't even possible. But let me tell you, this is an economic policy which is seriously being concerned in many countries of the world today. Greetings to everyone. I am Mrinal Joshi, and the topic which I've chosen for today is universal basic income is the only way to eradicate poverty. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. But it will be no exaggeration to say that nearly 68.8% of the total Indian population lives on $2 per day. I repeat, only $2 each day. वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है, कहाँ समझ में आता है. Poverty is not a natural calamity like earthquake that just happens, but rather it is a result of unfair laws and inequalities. Income actually is a public inheritance that everyone should be entitled to. And this will only be possible when the economic policy called UBI, Universal Basic Income, will be implemented, not just in India, but in every country of the world. Some of you might be thinking that what is the need of the government to distribute money for free? But the most important reason of doing so is the job losses that are happening and will happen due to automation and artificial intelligence. Believe me, the results of UBI are going to be fascinating. The nutrition level of the families and particularly children will go up. There will be improvement in the educational outcomes. And we all know very well that without education, thinking of employment or earning livelihood is next to impossible. Along with education, people will get food, shelter, healthcare, and whatever is necessary for a bright future. But I have a doubt. What is the need of giving money to a person who is already rich? The money from basic income for the super rich person is just useless. So in my opinion, the government should selectively choose people to hand out this income in order to eradicate poverty. I have to say a lot about this amazing topic, but as time is running out, I would like to conclude by saying, yes, I agree that UBI now is the best possible way to eradicate poverty. But the youth of the country should not be dependent on anybody for anything. मुसीबत चाहे जो भी हो, हर आपदा को अवसर बनाना है. मुसीबत चाहे जो भी हो, हर आपदा को अवसर बनाना है. दिखाकर रंग अपनी मेहनत का इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. मृणाल, हमने आपकी वीडियो देखी। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, और ये जो आपका सफर रहा, ये जो यूथ पार्लियामेंट तक आपने अपनी आवाज पहुंचाई और हमें गर्व महसूस करवाया, तो ये पूरा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें।
Thank you so much, ma'am. I'm immensely grateful to be the part of this wonderful show. Actually, I belong to Gadwal, Uttarakhand, but from the very beginning, I'm living in Himachal only. And I'm currently pursuing journalism from Center of Excellence. और नेशनल यूथ पार्लियामेंट का सफर शुरू हुआ जब मैंने एनएसएस के पेज पर एक नोटिफिकेशन पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होगा। तो पार्लियामेंट पहुंचने से पहले 3 लेवल क्लियर करने पड़े। पहले कॉलेज लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल। Initially, through 150 venues, nearly 2.34 lakh youth participated in this event और सिर्फ 29 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होनी थी पार्लियामेंट में जाने के लिए। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो इनिशियली 6052 स्टूडेंट्स यहाँ से थे और सिर्फ जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती उसे ही पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलता। तो एनएसएस से ही इसकी शुरुआत हुई। हर स्टेज पर हमें एक नया टॉपिक दिया गया, उसे 2 से 3 दिन के अंदर हमें प्रिपेयर कर कर प्रेजेंट करना होता था और ये सफर मेरा काफी अच्छा रहा। जर्नी वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। पार्लियामेंट जाने के बाद हमें सेंट्रल हॉल दिखाया गया, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट म्यूजियम, लाइब्रेरी, ये सब दिखाया गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ सो फार। और जब मुझे पता चला कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी, एजुकेशन मिनिस्टर और एमपी श्री सुरेश भारद्वाज, श्री सुरेश कश्यप जी, इन सब ने मेरे लिए ट्वीट किया है, तो मुझसे ज्यादा गर्व मेरे मम्मी पापा को हुआ और वो मोमेंट मुझे मेरी लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट था। मृणाल, सिर्फ आपको ही या फिर इन जितनों के आपने नाम लिए कि आपके मम्मी पापा को, इतने हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इन सभी को ही गर्व नहीं हुआ, बल्कि हम सभी को भी बहुत गर्व हुआ। जो यहाँ की पूरे हिमाचल की जनता थी, उन्होंने जब आपको बोलते हुए सुना तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे हिमाचल से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची इतनी गर्जनी आवाज में वहां पे दहाड़ रही है और अपने इतने अच्छे तरीके से अपने जो भाव है वहां पे बता रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपने हमें, पूरे प्रदेश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मृणाल, थैंक यू। जैसे आपने अभी बताया मुझे कि आप जर्नलिज्म कर रही है, जहां तक मुझे पता है कि संजौली कॉलेज में जर्नलिज्म मेरे टाइम पे तो नहीं था। तो जर्नलिज्म संजौली कॉलेज से कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैम, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। द होल स्टोरी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। तो मेरा क्रिकेट की तरफ झुकाव बहुत बढ़ने लगा था और मैंने मन में ठान ली कि करना है तो क्रिकेटर ही बनना है अपनी लाइफ में। तो मैंने अपने मम्मी पापा से जब इस बारे में बात करी तो दे स्ट्रिक्टली सेड नो। एज आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सो दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ। वो कहते थे कि पहले स्कूल जाएगी, वहां से फिर एकेडमी जाएगी, वहां से घर वापस आकर प्रैक्टिस करना, तो अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखोगी। तो उन्होंने मना कर दिया। आई वॉज रियली डिसहार्टेंड एट फर्स्ट, पर फिर मैंने सोचा कि दुखी बैठने से तो कुछ नहीं होगा, आई हैव टू चेज माई ड्रीम्स। तो फिर मैंने सोचा कि अगर क्रिकेटर नहीं तो कुछ ऐसा करियर चूज करती हूँ जो मुझे क्रिकेट के साथ जोड़े रखे। तो मेरे मन में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आया। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। शुरू से ही मन में था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ना है, पर वहां पर तो जर्नलिज्म सब्जेक्ट ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती, और कई दफा सुना है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, और वो वक्त था जब इस कहावत को आजमाने की बारी आई। तो मैंने एक खत लिखा नरेंद्र मोदी जी के नाम, जिसमें मैंने लिखा कि मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना है, मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है, और मेरे जैसे हजारों और भी बच्चे होंगे जिन्हें की जर्नलिज्म पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर वो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो प्लीज उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। पत्र लिखे हुए 1.5 महीना बीत गया। फिर एक दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक लेटर आया जिसमें लिखा था, योर रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड हियरविद फॉर एन एक्शन एज एप्रोप्रिएट। और ये पढ़कर मेरे मन में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। मुझे पता था अब यहाँ जर्नलिज्म जरूर इंट्रोड्यूस होगा, और 6 महीने के अंदर संजौली कॉलेज में जर्नलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और आज मुझे वहाँ जर्नलिज्म पढ़ते हुए 1 साल बीत भी गया है।
ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत सारे लोग अपने सपनों को ऐसे ही दफन कर देते हैं कि शायद उनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं, या वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उनकी जो रिक्वेस्ट है कोई भी उस पे ध्यान नहीं देगा। पर आप उसका जीता जाता जागता उदाहरण है कि आपने मोदी जी को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी और आपको उसका एक्शन देखने को मिला कि संजौली कॉलेज में जर्नलिज्म जो शुरू किया गया। तो इसके लिए आपने अपनी ताकत तो दिखाई है, साथ साथ में हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक करने का काम भी अच्छे से करा है। उनको भी यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो आपकी आवाज जरूर सुनी जाती है। जो नेता होते हैं वो हमारे द्वारा ही चुने गए होते हैं, तो यदि आप अपनी बात पहुंचाएंगे उन तक, तो अगर आपकी बात सही होगी तो जरूर वो सुनी जाएगी। तो मृणाल, इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको शौक तो होता है बोलने का, कि कई शीशे के सामने बोलते हैं, डिबेट डेक्लामेशन अपने आप से ही करते रहते हैं, या फिर किसी के सामने बोल लेते हैं, पर जैसे स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो कम कम आने लग पड़ते हैं। मतलब एक स्टेज फियर होता है बच्चों को। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेगी कि इस फियर से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जो हमें सुनने वाले लोग होते हैं, वो भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। वो हमें हमें इस बात का डर होता है कि वो हमें जज करेंगे, शायद इसलिए बच्चों को स्टेज फ़ियर होता है। पर एक बात मन में हमेशा रखनी चाहिए कि दोज़ हू क्रिटिसाइज़ यू आर नॉट द रीज़न टू चेंज योर अप्रोच, बट रादर दे आर अ बेंचमार्क टू कैरी ऑन। और हमें जो हमारे मन में है वो अचीव करना ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। पहली बारी अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर नाकामयाब हो सकते हैं, लेकिन बार-बार कोशिश करने पर कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन मिलती ज़रूर है। इसलिए बार-बार कोशिश कीजिए, बार-बार उस स्टेज पर चढ़िए और ज़रूर आपका फ़ियर एक दिन खत्म हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, बार बार कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ये जो फियर है उससे मुक्ति मिलेगी। मृणाल, जब आप यूथ पार्लियामेंट में गई थी, इतने बड़े बड़े लोग वहां पे होंगे और लाखों लोगों में से अपना सिलेक्शन करवाना, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। आपको कितनी स्टेजेस पार करनी पड़ी होगी, तो कोई ऐसा स्ट्रेस या फिर कैसा एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा था वहां जाके? थोड़ी नर्वसनेस हुई होगी या कुछ कुछ ऐसे दिमाग में ख्याल, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा तो हमें ज़रूर बताएँ, हम जानना चाहेंगे। जी नहीं, मुझे डिबेट डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हुए बहुत साल हो गए हैं। मैं बचपन से ही डिबेट डेक्लामेशन में बहुत इंटरेस्टेड थी। ये बात है 7th क्लास की, जब मैंने पहली बार एक डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट किया था। शिमला के लोग तो जानते ही होंगे कि यहाँ का जाना-माना रोटरी क्लब हर वर्ष मंथन नाम का एक कॉम्पिटिशन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ करता है। तो उस साल भी वो कॉम्पिटिशन हुआ, पर हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स थे कि सिर्फ सीनियर मोस्ट क्लास से स्टूडेंट्स जाएँगे। पर हमारे एक न्यू इंग्लिश टीचर आए थे, मिस शोभरा ज़िंटा, और शी रिकमेंडेड माय नेम। शी सेड कि मृणाल हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल इन दिस कॉम्पिटिशन। और फिर वहीं से शुरुआत हुई थी डिबेट डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करने की। एंड शोभरा मैम वाज़ द वन हू रिकॉग्नाइज्ड माय टैलेंट, और उसके बाद मैं हर डिबेट डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करती गई और मेरी नर्वसनेस बिल्कुल खत्म हो गई। शुरुआत में तो मुझे भी डर लगता था स्टेज पर चढ़ने से, लेकिन जब आप किसी चीज़ को बार-बार करते हैं और किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। और जब मैं पार्लियामेंट में गई तो मेरे मन में बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी। मुझे बस ये पता था कि मुझे अपने विचार अच्छे से जजेस के सामने रखने हैं, और मेरा परफॉर्मेंस वहाँ भी काफ़ी अच्छा रहा था। जी, बिल्कुल। और मृणाल, एक बात बोलूँ कि आप लिखती बहुत प्यारा हैं। जो जितने भी विचार आपने वहाँ पे रखा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आपने उसको लिखने में भी महारत हासिल की है। तो आपको राइटिंग का भी शौक है? हाँ जी मैम, मुझे राइटिंग का भी शौक है। कई विचार चलते रहते हैं मन में, तो कभी-कभी लिख लेती हूँ उन्हें, आर्टिकल्स लिख लेती हूँ। ओके, ओके। मतलब जर्नलिज्म के लिए अभी से आपकी अच्छी खासी तैयारी शुरू से ही स्टार्ट रखी हुई है आपने। ये हाँ जी। अच्छी बात है कहीं न कहीं। मृणाल, कुछ ऐसी जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी और उनके डिबेट डेक्लामेशन करते होंगे, बट उनको रास्ता नहीं पता होगा कि अ, जैसे हम शिमला में हैं, तो शिमला से किस तरह से वो यूथ पार्लियामेंट दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप वो रास्ता उनको बताएँगी आज हमारे इस प्रोग्राम में, तो आई थिंक उनके लिए हेल्पफुल होगा कि कल को वो भी पार्टिसिपेट करना चाहें। जैसे अभी आप बता रही थी कि 5,000 कुछ इसमें एंट्रीज़ हिमाचल से आई थी।
तो क्या पता कल को काफी सारे लोग आ सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल में प्रतिभा बहुत सारी है, बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। तो अगर आप वो रास्ता उन्हें बताएंगे कि वो किस तरह से जा सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एट प्रेजेंट, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं कल कल या परसों आपका स्टेटस देख रही थी, उसमें आपने एक काव्य वर्षा करके अपना रखा था कि जिसके आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनी है। उसके बारे में भी अगर आप हमें जानकारी देगी तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी, क्योंकि ये कोविड का समय था, इसलिए सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस मिलकर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। शायद ये नवंबर के महीने में इसकी नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। और अगर पिछले वर्ष की बात करूं मैं, तो मुझे पता चला था ये दिसंबर के महीने में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिलेक्शन शुरू हो गई है। तो पहले वर्चुअली ये हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुई, फिर वर्चुअली स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुई और फाइनल लेवल फिर दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको एनएसएस से या नेहरू युवा केंद्र से जुड़े रहना है। और काव्य वर्षा एक ग्लोबल कम्युनिटी है which facilitates the interaction between youth and eminent personalities। और इसके ज्यादातर मेंबर्स नेशनल यूथ पार्लियामेंट 1 और नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2 के सदस्य हैं। और मुझे इसका चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है टीम हिमाचल प्रदेश का। इसमें कई सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज के इंटरव्यू हमने कर लिए हैं, जैसे अन्ना हजारे जी और मिसेस यूनाइटेड नेशंस, और कई पद्मश्री अवार्डीज के इंटरव्यू भी हुए हैं। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी दिया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है फॉर होस्टिंग मैक्सिमम पर्सनालिटीज फॉर वर्चुअल एजुकेशनल सेशन। ओके, मतलब ये बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली हम भी इसको जल्दी फॉलो करेंगे। काव्य वर्षा के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी। अगर वहां पे इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू आते हैं तो डेफिनेटली मुझे क्या, सभी को, जितना भी यहाँ पे यूथ है, सभी को फॉलो करना चाहिए और जानना चाहिए कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी है या क्या उनका स्ट्रगल रहा है। मृणाल, जो एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि जो आपकी हर एक, ऐसे बोलते हैं कि एक, जैसे एक मैन होता है उसके पीछे तो बोल देते हैं कि देयर इज अ वुमेन बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस, है ना? तो आपकी सक्सेस के पीछे सबसे मेन रोल किन किन लोगों का रहा है, उनके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरे टीचर मिस शोभरा जिंटा, जिन्होंने मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज किया। मुझे भी इतना नहीं पता था अपने बारे में कि मैं डिबेट डेक्लेमेशन में इतना अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ही मेरे ऊपर ट्रस्ट शो करके मुझे स्कूल के बाहर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हर। बाकी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का है। मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं जताया कि उन्हें एक लड़का चाहिए था। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि अच्छा हुआ हमारी एक बेटी हुई है और उस बेटी ने हमारा इतना नाम रोशन किया है। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी चीज की कमी मुझे नहीं होने दी। जो चीज मुझे चाहिए वो चीज, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, उन्होंने मुझे ला कर दी है। तो मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का मेरी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैथ में एक टाइम पे बहुत वीक थी और हमारे एक टीचर थे विजय मेहता जी, और उनकी मोटिवेशन से आज तक मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक टीचर की थोड़ा सा हमें पुश करना बहुत महत्व रखता है हमारी लाइफ में। हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं यदि हमारे पे कोई विश्वास दिखाए। और यही मैं बात हमेशा अपने प्रोग्राम में भी कहती रहती हूँ कि हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता है कि हिमाचली जो यूथ है उसमें टैलेंट बहुत है, बट वही है कि वो सामने नहीं आते और लोगों को लगता है कि वही युवा मजे कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है, ऐश कर रहे हैं घर में बैठ के, कुछ नहीं। तो उसी चीज को मैं कहीं ना कहीं तोड़ने का अभी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, हमारे जो टैलेंट है वो मृणाल जोशी जैसे भी हैं जो पूरे देश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। अभी स्टेट कोऑर्डिनेटर इतनी छोटी उम्र में बनना अपने आप में ही एक गौरव की बात है। तो मृणाल, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपने स्टाइल में, जैसे आप बोलती हैं, जैसे आप किसी भी स्टेज पे जाके बोलती हैं, तो हमारे यूथ को कोई मैसेज दें, या जैसे कोरोना टाइम चल रहा है या कुछ भी जो आप बोलना चाहती हैं उनको, आप उनको एक बार अपने अपने तरीके से बोल के हमारे सामने दिखाएं, क्योंकि वो तो हमने वीडियो में देखा था, बट एक होता है ना कि फेस टू फेस इंटरेक्शन में आप कैसे बोलती हैं हम देखना चाहते हैं।
तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि there is no such thing as a problem free life. Troubles are meant to come in our life, and but however the way in which we react and respond to our problems or we experience those troubles depends totally on us. तो हमें कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं फील करना चाहिए। हमें एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि दिस टू शैल पास। अगर ये कोरोना का समय आया है तो ये चला भी जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू लिव इन। बिल्कुल, और बहुत अच्छा संदेश आपने सभी को बोला। और मृणाल, एक बात, आपको और किस किस चीज का शौक है? आप क्या करना चाहती हैं? मतलब इन फ्यूचर आपकी ड्रीम्स क्या हैं? कि आप क्या बनना चाहती हैं आगे? जो आपका एनकरेज करते हैं कि मुझे ये बनना है, उसके लिए अब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि अब मुझे ये करना ही करना है? मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही करना है मैम। मुझे क्रिकेट में मैंने बताया बहुत इंटरेस्ट था, तो अब कोशिश करूंगी कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को परस्यू करूं, बीसीसीआई ज्वाइन करूं और वहीं पर या तो कमेंटेटर, एंकर या आईपीएल में अगर मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला तो वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। बिल्कुल, और यही बात होती है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा एक सपना टूटा है, पर एक सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो वही तुमने करा कि अगर क्रिकेटर नहीं बने तो इनडायरेक्ट वे से क्रिकेट में ही तुमने अपना नाता जोड़ के रखा। तो यहाँ से सभी को सीखना चाहिए कि लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमारे जो पेरेंट्स है कुछ गाइड करते हैं हमें, तो डेफिनेटली उनको सुनना चाहिए, पर अपने सपनों को भी उनके साथ जोड़ के उनके तरीके से पूरे करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। क्या पता आप भी मृणाल जोशी की तरह यहाँ पे बैठ के फिर हमें इंटरव्यू दें और हमें बताएं कि कैसे करना है अपने सपनों को पूरा। मृणाल, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं वो सारे लगभग आपको जानते हैं, और आप उनसे कुछ कुछ बात कहें जिससे उनके अंदर एक जोश भरे, और उन माता पिता को जो अपने बच्चों को कम सपोर्ट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारी बात नहीं मानते, अपनी जिद करते हैं, या फिर उन टीचर्स को जिनको लगता है कि अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो बाकी चीज में अच्छा नहीं हो सकता है, या उन बच्चों को भी जो अपने आप को किस वे में आंकते हैं कि हम तो डफर है, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको आप एक अगर अपना मैसेज देंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि डोंट लेट अदर्स राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखिए। जो आपको करना है वो मन में ठान लीजिए कि मुझे ये करना ही करना है, अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे किसी का सपोर्ट हो या ना हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और लोगों का काम तो क्रिटिसाइज़ करना ही है। Even if you will lay down and you will let others walk over you, they'll say that you were not flat enough. तो लोगों का काम तो कहना ही है, they will criticize you in any way. मुझे भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, पार्लियामेंट से आने के बाद भी क्रिटिसाइज किया कि इंग्लिश में क्यों बोल के आई है, हिंदी में क्यों नहीं बोला। तो लोग तो बहाने ढूंढते ही रहते हैं आपको क्रिटिसाइज करने के, लेकिन आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि आप वो चीज अचीव कर सकते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। और भाषा सिर्फ, हम ये कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ एक समझने का तरीका है, और हम एक्सप्रेस हमें जिसमें कंफर्टेबल लगता है, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में तो इंग्लिश में हिंदी में बात करते हैं, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। आपने जैसा भी बोला हमें पूरा गर्व है। आप कुछ कहना चाहती है आई थिंक? जी, वहाँ पर सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं थे, ज़्यादा हिंदी नॉर्थ इंडिया के लोगों को ही समझ आती है। वहाँ पर एक मिनी इंडिया था, वहाँ पर साउथ इंडिया के लोग थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, और जब मैं उनसे नॉर्मली बातचीत कर रही थी, जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो उन्हें हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो वो बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बाकी लोगों को जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों को समझ आए। कोई एक पर्टिकुलर भाषा तो सब लोगों को नहीं आती है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को आती है, अगर उस भाषा में आप एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आपके थॉट्स ज्यादातर लोगों में फैलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और हम इससे बिल्कुल आपसे सहमत हैं। मृणाल, आप मैं जानना चाहती हूँ कि
आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ती होंगी और मतलब अपनी कुछ ना कुछ लिखती रहती होंगी, तो ये जो मस्ती मजाक वाली जिंदगी होती है, जैसे होते हैं ना, एक यूथ होता है, उसमें अभी एक पैशन होता है कि हम ऐसे करें, यहाँ घूमने फिरने जाएं, तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जो बच्चा मतलब सक्सेसफुल हो जाता है या वो कोशिश करता है, तो वो ये सब चीजों से कट ऑफ हो जाता है कि उनकी हम क्या है, उनकी खुशियां छीन रहे हैं, उनकी जवानी की मस्ती छीन रहे हैं। तो ऐसा कि आपकी लाइफ में भी आपकी भी ऐसी बेरंग सी जिंदगी है, या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है यहाँ पे? ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं तो अपनी लाइफ को पूरा एन्जॉय करती हूँ। बल्कि अगर मैं स्कूल कॉलेज की बात करूँ तो मैं बैक बेंचर हूँ। और ये एक मिथ है कि सिर्फ जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं वही टॉप कर सकते हैं और बैक बेंचर बिगड़े हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैक बेंचर हूँ, मैं अपनी लाइफ पूरी एन्जॉय करती हूँ। हमने टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखी है, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। और मैं फनी वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ बीच-बीच में, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता रहे। मुझे डांस करने का बहुत शौक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बेरंग है। अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के साथ मैं अपनी ज़िंदगी एन्जॉय भी कर रही हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई ही जिंदगी नहीं है। पढ़ाई के साथ हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, और कर रहे हैं, आपके सामने हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके आए हैं। इसी के साथ ही मृणाल, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप हमारी साइड स्टोरी पे आई और आपने अपनी मेन स्टोरी हमारे बीच में रखी और हमसे बातचीत करी। और साथ ही मैं उन जो हमें दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और उनसे चाहूंगी कि वो कमेंट करके बताएं कि उनको मृणाल जोशी से बातचीत करके उनके बारे में जानकर कैसा लगा। और यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से और युवा टैलेंट को अपने पेज पर लाएं। और अगर आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो जिसमें टैलेंट है, प्रतिभा है, और उसे यहाँ पे आना चाहिए, तो हम पहला मौका देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आप हमें मैसेज कीजिए, हम डेफिनेटली उसको मौका देंगे। मृणाल, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना के समय में अगर आप डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा फ़ील मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है, तो वो चली भी जाती है और ये वक़्त भी एक दिन बीत जाएगा। इसलिए अपनी हॉबीज़ परस्यू कीजिए, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रहिए और पॉज़िटिविटी अपने माइंड में हमेशा रखिए और अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है आपका मैसेज सभी बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। अब तो हिमाचल में केसेस कम हो रहे हैं, धीरे-धीरे हम इस सिचुएशन से भी आउट होंगे। तो इसी के साथ ही आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए।